Assalamu alaikum. I hope you people are doing well and good morning for non-Muslims. Today's topic of discussion is my regarding the previous discussions that I have delivered at previous times. So there are topics that I was discussing about hydraulic conductivity importance in aquifers in their pumping tests of wells. There are some artesian wells also I have know about. Then if you know about, then comment me in comment section and discuss their issues, and so that I shall give you people the um, mm, detailed knowledge about these valves. All right, and now I am here for further discussing the hydraulic conductivity effects in the aquifers. So I am going to discuss their values, is their isotropic values or anisotropic values. So the aquifers are there should be anisotropic aquifers, and anisotropy basically is the rule where directional properties of hydraulic conductivity exist. In alluvium, this results from two conditions. One is that individual particles are seldom spherical, so that when deposited underwater, they tend to rest with their flat sides down. The second is that alluviums typically consist of layers of different materials. I am here to discuss about alluvium. There are so many parts of regions and forms, but I am here you people discussing about alluvium, and you know very well what is alluvium. If you don't know, then comment me so that मैं आपको इसके बारे में भी डिटेल्ड नॉलेज दे सकूं, क्योंकि एलुवियम का कईयों को तो पता ही नहीं है, कुछ लोगों को तो इतना भी नहीं पता कि एलुवियम है क्या। तो मेरा मेरा मतलब है इरादा एलुवियम को, इन चीज़ों को भी डिफ़ाइन करके आप लोगों को एक डिटेल्ड नॉलेज दूँ। बट बिफोर दैट आई एम हियर फॉर aquifer discussions, their hydraulic conductivities determinations. So the individual particles are seldom spherical, so that when deposited underwater, they tend to rest with their flat sides down. तो इसके अलावा मैं आपको क्या बताऊँ, if layers are horizontal, any single layer with a relatively low hydraulic conductivity causes vertical flow to be retarded, but horizontal flow can occur easily through any stratum of relatively high hydraulic conductivity. So the typical field situation in alluvial in in alluvial deposits is to find a hydraulic conductivity in the horizontal direction that will be greater than a value in a vertical direction. So I hope you people understand what I am saying, and you people go with your notes, with your materials, and you can match my knowledges, and I hope I am delivering a right knowledge. So let's suppose I am now discussing in a, if you people know about science and physics, then there should be some assumptions, some considerations. So I am here considering an aquifer that consists of two horizontal layers, each individually isotropic with different thicknesses and hydraulic conductivities. For horizontal flow parallel to the layers, the flow in the upper layer per unit width is Q1 is equal to KIZ, and where I is the hydraulic gradient and K1 and Z1 are as indicated in figures. And figure I am going to discuss about you people, this is the figure. And
the horizontal flow parallel to layer are has been discussing my videos. So I must be same in each layer for horizontal flow. It follows that the total horizontal flow is q1 plus q2, and that is here, that is here I am discussing here. And it's like q1 plus q2 is equal to I k1 z1 plus k2 z2. ऑल राइट, एंड फर्दर इसमें मैं आपको बता दूं, हाँ, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एंड दीज आर इंडिकेटेड इन फिगर्स, एंड ये मैंने आपको बता दिया है. सो अगर होमोजीनियस सिस्टम है, आपको पता है सिस्टम होमोजीनियस कैसे होता है, तो इसको हम फिर इस तरह डिस्कस कर लेते हैं. ये वाली इक्वेशन को हम वहाँ फॉल कर लेते हैं. ऑल राइट, ये आपको लर्न करना पड़ेगा खुद से. कह लें इन चीज़ों को अपने माइंड में. क्रैमिंग नहीं कुछ लोग कर लेते, वो अगर कर लें तो बेहतर है, बट मैं नहीं इन चीज़ों को पसंद करती कि क्रैमिंग की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वैसे करनी चाहिए है, बट मेरे जहन में आता है कि नहीं, कंसेप्चुअल अगर आप लोगों को पता है, कंसेप्ट्स का पता है अगर, तो ये इट्स क्वाइट इनफ. तो इसके अलावा यहाँ पर मैंने आप लोगों को भी बताया था के एक्स की वैल्यू. तो के एक्स इज़ दी हॉरिजॉन्टल हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी फॉर इंटायर सिस्टम. और जब इनको इक्वेट किया जाता है, जब सोल्व करने लगते हैं, तो हमारे पास ये नॉलेज, ये एक इक्वेशन आती है, ये वाली. ठीक है, ये वाली नॉलेज आती है, और विच कैन बी जनरलाइज्ड फॉर एन लेयर्स एज. इनको जब इस तरह जनरलाइज वे में लिखते हैं तो हम इनको ऐसे डिस्कस कर लेते हैं. और ये सारी मैथमेटिकल टर्म्स हैं, कोई इशू नहीं है इसमें. आप बिलीव करोगे ये ना मैथ्स की टर्म्स हैं, मुझे एग्जैक्ट इनके नेम नहीं अब इस वक्त याद, बट मुझे याद पड़ता है. मैंने एफएससी जो की हुई है वो मैथमेटिक्स में नहीं ना है, बट मैंने ये बीएस में ये चीज़ें स्टडी की थी, और ये बहुत आसान थी. इनमें इंटीग्रेशंस थी, और ये सारी चीज़ें इनको करना आसान है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर आप करें ना एक दफ़ा, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है. सही है. इसके अलावा मैं आप लोगों को क्या बता सकती हूँ. हाँ, अब अच्छा, वो जो मैंने नॉलेज बताई थी वो हॉरिजॉन्टल लेयर्स के लिए थी. ओके, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी वर्टिकल फ्लोज जहाँ होते हैं, वर्टिकली जहाँ पर सिपेजेस हो जाती हैं, वहाँ क्या सिचुएशन होती है. तो फिर उनको फ्लो पर यूनिट एरिया उनका ये फार्मूला बनता है, Q इज इक्वल टू K1 DH1 ओवर Z1. ठीक है, इसके अलावा DH1 इसमें क्या है, हेड लॉस है. और हेड लॉस को जब हम सोल्व करते हैं तो फिर वो इस तरह की फार्मूला बन जाता है. इसी को आगे पीछे किया हुआ इस फार्मूले को, मतलब DH1 इधर रह गया. ये बहुत आसान मैथमेटिकल फार्मूला है. ठीक है, देखिए DH1 को इधर रखा, इज इक्वल टू करके QZ ऊपर है, और Z1 यहाँ से ऊपर चले जाएगा, और K1 जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा. सही है. नेक्स्ट है इसके अलावा क्या है, QZ जो है ना इसमें, वो सेम रहना चाहिए. ठीक है, ताकि इनके अंदर कंटिन्यूटी रहे. सही है. और इनकी जो फर्दर फार्मूला लेवल है, और इसको कैसे, मतलब इसको डिस्कशंस की हुई है, कैसे इसको इक्वेट किया हुआ है, ये सारा मैंने आप लोगों को यहाँ पर शो कर दिया है. ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए DH1 प्लस DH2 इज इक्वल टू Z1 ओवर Z2.
इसी को फर्दर हमने सिंप्लीफाई कर लिया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है ये क्योंकि हमने बेटा मतलब हमने कहा हाइड्रोलिक कंडक्टिविटीज़ को लेके चलना है ना, तो जब हम हाइड्रोलिक कंडक्टिविटीज़ को लेके चलते हैं तो ये चीज़ें ऐसे आती हैं। और इसके अलावा हाँ, इसके अलावा ये देखिए फर्दर फिर इन्होंने ये कह लो कंपैरिजन भी कर लिया कि एक्स और के जेड का, और ये चीज़ें इनको फिर इन्होंने डिफ्रेंशिएट कर लिया है, ठीक है। फर्दर आप यहाँ देखें तो ये देखिए कंफर्म करके इनको फिर इन्होंने बता दिया है कि ये लेस देन है या ग्रेटर देन है। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं लग रही। आई थिंक इट्स ग्रेटर देन के एक्स और के जी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन वन। और इसके अलावा इट फॉल्स इन रेंजेस बता दी हुई हैं एलुवियम की के ये रेंजेस 2 से लेकर 10 तक होती हैं, ठीक है। बट वैल्यूज़ जो इनकी हैं वो 100 से अबव भी चले जाती हैं, क्योंकि जब 100 से अबव जाएंगी तो आप समझ लीजिएगा वहाँ क्लेज होंगे, क्ले कंटेंट ज़्यादा होगा, और क्ले की प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से फिर हम मतलब इधर इनकी वैल्यूज़ ज़्यादा आएंगी। इसके अलावा फॉर कंसोलिडेटेड मटेरियल्स anisotropic conditions are governed by orientation of strata, fractures, solution openings or other structural conditions that don't necessarily possess a horizontal alignment। आप देखें कितना बड़ा लिमिटिंग फैक्ट है। लिमिटिंग फैक्ट मतलब लिमिटेशंस हैं ये एक चीज़ की, मतलब कह लें ड्रॉबैक टाइप है। तो जहाँ पर ये चीज़ें होंगी तो फिर ये वैल्यूज़ इतनी नहीं फॉल करेगी। नेक्स्ट है फिर हम उसमें क्या करते हैं, फिर हम ना डार्ट से ला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम डार्ट से ला अप्लाई करते हैं तो ये चीज़ें काफ़ी मैनेज करने के लिए आ जाती हैं। अब देखिए यहाँ देखिए मैंने डार्ट से ला इधर अप्लाई भी हुआ है, और ये इक्वेशन है, ठीक है। तो इस तरह जब हम चीज़ें मतलब डिस्कस करते हैं तो इनको उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट हो जाती हैं, इधर वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, ऑलराइट। और यहाँ के हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ही है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है कि, और ये एंगल बनाती हैं, और इनकी डिफरेंट मतलब कह लो हमें क्या उसे कहते हैं नॉलेज इनकी एग्जैक्ट हमें वो मिल जाती है, वैल्यूज़ इनकी एग्जैक्ट हमें यहाँ ना वैल्यूज़ मिल जाती हैं, ठीक है। यहाँ लिखा भी हुआ है कि बी क्या है, हाइड्रोलिक कंडक्टिव डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल एट बी बीटा। इसको बीटा ही पढ़ते हैं फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। अगर किसी को ज़्यादा नॉलेज है इस मामले में तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। और इसके अलावा मैं आपको इसमें क्या बता सकती हूँ, बस मेरे ख्याल से काफ़ी है इतना आज के लिए। और मेरी वीडियो की टाइमिंग भी बहुत हो गई है। एंड काइंडली रिमेंबर मी इन प्रेयर्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।